Welcome back to my YouTube channel. So today we will solve some numerical problem based on application of Gauss law. So let us start from first numerical. So first numerical is that a spherical Gaussian surface encloses a charge of 8.85 into 10 power minus 8 coulomb. Then calculate the electric flux passing through the surface, first part, and second part, if the radius of the Gaussian surface is doubled, then how would the flux will be changed. So how to solve this numerical? Let me start. A spherical Gaussian surface encloses a charge of 8.85 into 10 power minus 8. What is this? This one is a charge. यहाँ पे इस न्यूमेरिकल में चार्ज की वैल्यू गिवन है विच इज इक्वल टू 8.85 into 10 power minus 8 coulomb. And first part which we have to calculate the electric flux passing through the surface. So according to Gauss law, electric flux passing through Gaussian surface phi is equal to 1 upon epsilon naught times total charge enclosed in that Gaussian surface, where this epsilon naught is permittivity of free space which is a numerical constant. तो अब इन दोनों वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है. phi is equal to q और इस q की वैल्यू है 8.85 into 10 power minus 8 एंड एप्सिलॉन नॉट ये कांस्टेंट वैल्यू है जिसे हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं. इसकी वैल्यू भी एग्जैक्टली सेम होती है 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 12. सो 8.85 अपॉन 8.85 कैंसिल आउट. phi इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 8 अपॉन 10 पावर माइनस 12. सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा 10 पावर प्लस 4. we are calculating here flux. So SI unit of flux की SI unit होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. फर्स्ट पार्ट. नाउ सेकेंड पार्ट. if the radius of the Gaussian surface is doubled, how would the flux change? means इस Gaussian surface जिस पे चार्ज इतना है Q, अगर इसकी रेडियस को डबल कर दें तो अब इसके थ्रू फ्लक्स कितना पास होगा. सो आंसर विल बी रिमेन सेम. क्यों? इसलिए क्योंकि अगर हम रेडियस को डबल कर देते हैं तो भी ये गॉसियन सरफेस दैट विल कंटेन सेम अमाउंट ऑफ चार्ज. सो व्हाट विल बी द आंसर? when the radius of the Gaussian surface is double, there will be no change in the flux. No change in the flux as the charge enclosed remains the same because charge remains same. Second part complete. Okay, now come to the next question. Question number 2. S1 and S2 are two hollow concentric spheres enclosing charge Q and 2Q respectively as shown in figure. ये क्वेश्चन दे रखा है. ये ब्लू सर्कल से फर्स्ट गॉसियन सरफेस है S1 जिस पे चार्ज है Q and there is another गॉसियन सरफेस S2 which contain charge 2Q. So first thing, first part, what is the ratio of electric flux passing through S1 and S2? इसका रेशियो कैलकुलेट करना है S1 और S2 के थ्रू. सेकेंड वन, हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 चेंज इफ
a medium of dielectric constant 5 is introduced in the space inside S1 in place of air. Okay. So solution of this question. First part, पहले कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस. इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस S1, इसको मान लेते हैं phi1. अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या होगा, phi1 इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन दैट गॉसियन सरफेस. ये फर्स्ट सरफेस S1 में कितना चार्ज इनक्लोज हो रहा है, ओनली Q. क्वेश्चन नंबर 1. बट कीप इन माइंड दिस रिलेशन इज वैलिड ओनली इफ देयर विल बी एयर और वैक्यूम. तो यहाँ पर एयर है या फिर वैक्यूम मीडियम है. सिमिलरली अब इसके थ्रू कैलकुलेट कर लेते हैं. इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस S2 phi2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन दैट गॉसियन सरफेस. अब इस सरफेस S2 में टोटल चार्ज इस पूरे बाउंड्री में कितना आ रहा है, इस गॉसियन सरफेस पे Q एज वेल एज 2Q. तो ये हो जाएगा टोटल चार्ज Q प्लस 2Q. सो 2Q प्लस Q 3Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. इक्वेशन नंबर 2. सो फर्स्ट पार्ट में हमें कैलकुलेट करना था व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू S1 एंड S2. सो S1 के थ्रू है phi1 और S2 के थ्रू है phi2. देयरफॉर रिक्वायर्ड रिजल्ट phi1 अपॉन phi2 is equal to Q upon epsilon naught upon 3Q by epsilon naught. This can be written as Q by epsilon naught into epsilon naught upon 3Q. So Q cancel out, epsilon naught cancel out. Phi1 upon phi2 is equal to 1 upon 3. First part. Now second part. Second part है how will the electric flux through S1 change if a medium of dielectric constant 5 is introduced in the space inside S1 in place of air. So second question, second part, flux passing through S1 जो कि अभी हमने जस्ट कैलकुलेट किया है, ये है phi1 इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन दैट सरफेस जो कि Q है. ये है स्पेशली एयर और वैक्यूम के लिए. क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ वी रिमूव एयर और वैक्यूम विथ अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, then when a medium of dielectric constant K is equal to 5 is introduced, then electric flux through S1 is, ये अलग केस है, phi1 डैश मान लेते हैं. ये हो जाएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स. अब अगर एयर है तो एयर की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होती है 1. दैट मीन्स एप्सिलॉन नॉट के साथ यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी है, बट एयर के लिए या वैक्यूम के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 है. बाकी अदर मीडियम के लिए जो वैल्यूज होगी वो हमें पुट करना पड़ेगा. तो यहाँ पे इस सेकंड पार्ट में व्हेन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज 5 इज इंट्रोड्यूस, सो दैट मीन्स यहाँ पे भी होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मीडिया
चार्ज उसमें सेम इनक्लोज हो रहा है। सो फाई 1 डैश इज इक्वल टू के, यहाँ पे के इज इक्वल टू है 1/5 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू, और क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ये कितना है 5। सो फाई 1 डैश इज इक्वल टू 1/5 फाई 1। मीन्स इस केस में जब उस एयर या वैक्यूम को रिप्लेस करके कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 5, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पहले का 1/5 हो जाएगा। पहले का जो नया इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स का 1/5 हो जाएगा।